Good morning, students. Up to last class, we have discussed the biotic component and abiotic components of the ecosystem environment. Our environment consists two kind of the components: biotic components and abiotic components. Biotic components, all the plants are known as, all the living organisms are known as biotic components. All the living organisms are known as biotic components. All the non-living beings, non-living component of the environment. अब ये नॉन लिविंग कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? चाहे वो एयर हो, वाटर हो, एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, ये सब बच्चों कौन से किस टाइप के हो जाएंगे? दीज आर दी नॉन लिविंग फैक्टर्स. दीज आर दी नॉन लिविंग फैक्टर्स, सो दीज आर नोन एज abiotic components. So these are called as abiotic components. So component of environment are of two types. All the living components, biotic component. Non-living components, abiotic components. Non-living क्या क्या हो गया? Air, water, sunlight, air, water, sunlight, temperature and soil. बात में समझ आ गया हमारे? कोई प्रॉब्लम नहीं. अब बात आती है बच्चों मेरे पास में, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. हम लोग जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं. वी एज वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास, नो वन और लिविंग ऑर्गेनिज्म कांट सर्वाइव अलोन, एग्जिस्ट अलोन. अकेला कोई नहीं रह सकता. अगर रहना है, जीना है, तो एक दूसरे के साथ जीना पड़ेगा, साथ तो देना पड़ेगा. लोग सोचें कि मैं इसको गिरा दूं, आज गिरा दूं, कल गिरा दूं, मजा आएगा. लेकिन जब बच्चों उसी का भी टर्न आएगा, जब उसका टर्न आएगा फिर तब क्या करोगे? तो बच्चों हमको अपने दोस्तों के साथ प्योर रहना चाहिए. प्योर रहना चाहिए इट मीन्स व्हाट इट मीन्स, हमें किसी का नुकसान नहीं होने देना चाहिए. अगर हमको पता चल गया कि इस काम से उसका नुकसान होगा तो हम लोग उसको रोक दें, समझाएं, बता दें. वी शुड इन्फॉर्म हिम और हर कि इससे तुम्हारा नुकसान हो सकता है. बिकॉज वी, अगर हम उसे आज बचाएंगे कल वो भी हमको बचाएगा. ये तो गिव एंड टेक का कॉन्सेप्ट है बच्चों. तो देखिए, एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स. हाउ दी एनिमल्स आर डिपेंडेंट अपॉन दी प्लांट्स. एनिमल्स आर डिपेंडेंट अपॉन द प्लांट्स फॉर फूड. खाना किससे मिलता है? प्लांट से. हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं. दीज वेजिटेबल फ्रूट्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स. नंबर वन फूड. सेकेंड वन शेल्टर. अ नंबर ऑफ एनिमल्स लाइक द बर्ड्स, लाइक द स्क्विरल, monkeys, they live on the trees. So trees give them, provide them shelter. Plants provide us fiber. Fiber, cotton fiber, jute fiber, flax fiber, and these fibers are used to making clothes, textile. So we obtain the clothing. Next one, timber. We are making this board. This board is made up of plastic or steel. Otherwise, normal board made up by the wood, timber, ply, doors or windows. These are made up of the timbers. Next one, wood. Wood, your furniture made up of the wood. Now spices. Spices aid the flavor in our food. So spices also obtained from the plants. So animals depend upon the plants for food, oxygen, shelter, clothing, timber, wood and spices. Plants, we take in oxygen during respiration, breathing. We release out carbon dioxide. That the oxygen that is released out by the animals is utilized by the plants for photosynthesis. How the plants depend upon the animals? How the plants depend upon the animals? Number one, plants depend for carbon dioxide. Carbon dioxide, they carbon dioxide utilized for the photosynthesis. Second one, manure.
हमारे यहाँ पर जो एक्सक्रीटा होता है, एक्सक्रीटा ऑफ द एनिमल्स, काउ डंग, बफेलो डंग, हमारी गोट डंग, इन सबको हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर मिला देते हैं। इट एड दी मैन्योर, हमारे फर्टिलाइजर्स, मैन्योर एंड मेक दी सॉइल रिच। तो हम लोग सॉइल रिच करने के लिए दी प्लांट्स ऑब्टेन दी न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट, और ऐसे दी डेड बॉडीज, excreta of the animals, these are the organic materials, these are organic material, and the organic material present in the soil, the organic material present in the soil is known as, क्या कहते हैं बच्चों इसको, ह्यूमस। क्या कहते हैं, ह्यूमस। और ह्यूमस you know very well increase the soil fertility, water holding capacity, तो they act as a manure. Next one, insects. A number of insects carry the pollen grains. Pollen grains को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना. Transfer of pollen grains from anther to stigma. We have learned in the plant chapter, and this is known as pollination. Pollination, butterfly, honey bees, a number of insects also. Next one, animals are also useful for the plant to spreading the seeds, and this is known as dispersal of seeds, seed dispersal. So got it, how the biotic components depend upon one another. Now students, how the biotic components depend upon abiotic components. How the biotic components depend upon abiotic components. Animals depend upon abiotic components. How? कौन कौन से abiotic components हैं जिन पर animals dependent होते हैं? Number 1, we breathe oxygen. We can breathe by utilizing the air oxygen. Second one, we take in food from the surrounding. कहाँ से लेते हैं फूड हम लोग? अपने सराउंडिंग से, अबायोटिक कंपोनेंट्स। इसी टाइप से हम लोग वी नीड वाटर, सो वी फॉर सर्वाइवल ऑफ द एनिमल्स दे टेक इन ऑक्सीजन, फूड एंड वाटर फ्रॉम द अबायोटिक कंपोनेंट्स। ये सब अबायोटिक कंपोनेंट है ना बच्चों, लिविंग थोड़ी है, अब तो दे आर डेड, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। नाउ प्लांट्स डिपेंड अपॉन abiotic components. Which are the abiotic components on which the plant depend upon? So plant depend upon for number 1, plants perform photosynthesis. For photosynthesis they need water. They need water from the soil. Second one, carbon dioxide taken in from the atmosphere. They also release oxygen. The oxygen, they also need oxygen for breathing, respiration. Next one, they need sunlight for performing photosynthesis. Now look students, we are going to discuss the habitat. Habitat होता क्या है? हैबिटेट अगर हम लोग एक जनरल वे में कहें तो ड्वेलिंग प्लेस जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रहती है, लिव्स, रिसाइड, ड्वेलिंग, रिसाइड, लिविंग। तो बच्चों जहाँ पर भी होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रहती है, द नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हैबिटेट। नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हैबिटेट। A place where an organism live is called as habitat. अब बच्चों हैबिटेट हो गया रहने की जगह, बहुत सिंपल वे में। अब मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, ये हैबिटेट होते कौन कौन से? बच्चों यू नो वेरी वेल, कुछ प्लांट्स हमारे वाटर के अंदर रहते हैं, कुछ प्लांट्स जमीन पे रहते हैं, कुछ हमारे माउंटेन्स पर रहते हैं। इसी टाइप से एनिमल्स ऑल्सो कैन लिव इन दी वाटर, एनिमल्स कैन लिव ऑन दी ट्रीज, एनिमल्स कैन लिव ऑन दी ग्राउंड,
तो जो बच्चों हमारे पास में इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, हैबिटेट। क्या कहते हैं, हैबिटेट। तो हैबिटेट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वेटिक हैबिटेट। इफ द ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द लैंड, if the organism live on the land is called as terrestrial habitat. If an organism live on the land is called as terrestrial habitat. Terrestrial habitat may be desert, desert जहाँ पर पानी बहुत कम होता है, जहाँ पर पानी बहुत कम होता है। सेकेंड वन माउंटेन्स, थर्ड वन ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड जहाँ पर अच्छी रेनफॉल होता है, दैट इज नोन एज ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड फॉरेस्ट, यू नो वेरी वेल। Now here aquatic habitat. Aquatic habitat can be divided into two categories. Number one fresh water और second one marine water. What do you mean by fresh water? Fresh water जहाँ पर हमारा water जो है खारा ना हो, जहाँ जिसका पानी खारा ना हो, हम लोग पी सकें, तो क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर, फ्रेश मतलब होती है फ्रेश एकदम नहीं, इसका मतलब है एक तो होता है बच्चों सॉल्टी वाटर, एक होता है हमारा फ्रेश वाटर। तो सॉल्टी वाटर मरीन वाटर, और जो फ्रेश वाटर है इट कंटेन सॉल्ट बट इन लेस अमाउंट। मरीन वाटर कंटेन सॉल्ट इन हायर अमाउंट। फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स। मरीन वाटर सीज, oceans, these are known as which kind of habitat? Aquatic habitat. Now look here, adaptations. What do you mean by adaptations? Adaptations क्या होता है? जैसे ही adaptation नाम सुनते हैं तो हम लोग सोचते हैं बहुत बड़ी चीज होती होगी बच्चों, इट इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड होता होगा। क्या बच्चों, आप लोग अभी यू आर एट होम, घर पर हो, और जब घर पर हो तो आपको आपकी क्लासेज स्टार्ट होती है 8 o'clock, राइट। अब 8 o'clock की क्लासेज स्टार्ट होती है तो आप लोग कभी उठे 7 बजे तो उठे, ब्रश किया, फ्रेश हुए, नहाए या नहीं नहाए बात की बात है, यू टेक बाथ और डिडंट टेक बाथ, और सीधे क्लास में पढ़ने बैठ गए, थोड़ी देर पढ़ा, थोड़ा ब्रेक मिला, नहा लिए, फिर उसी टाइम पर जल्दी से जब भी टाइम मिला ब्रेकफास्ट कर लिया। यू एडप्ट इन दी प्रेजेंट सिचुएशंस, जो हमारे प्रेजेंट सिचुएशंस हैं उनके अकॉर्डिंग आप लोग एडजस्ट हो गए, क्या कहेंगे, एडप्ट हो गए। अभी यही कंडीशंस अगर आप लोगों का स्कूल जब चलता था, you will have to present at 7:20 in a school। आप लोगों की बसें जो होती है 7:10 पर बाहर पहुंच जाती थी, 7:10 पर बाहर बसें पहुंच जाती थी। आप लोगों को अब ब्रश भी करना है, नहाना भी है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग यू डू बिफोर 7:60 पर आप लोगों की 6:60, 6:40 पर आप लोगों की बस लग जाती, और जब बस लग जाती तो आप लोग उस टाइम के लिए एडप्ट हो गए थे, एडजस्ट हो गए थे। आपको पता है स्कूल जाना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो स्कूल जाने के लिए यू विल हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन अभी तो आप लोगों को नहीं करना पड़ रहा। जब करना पड़ता है तो आप लोग उसके लिए एडजस्ट रहते हैं, क्या कहते हैं, एडप्टेशन। क्या करते हैं बच्चों, एडप्टेशन। वी एडप्ट इन दी सच काइंड ऑफ दी कंडीशंस, लिविंग कंडीशंस, और जो भी हमारी कंडीशंस होती है इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने आप को एडजस्ट कर देते हैं। इसी एडजस्टमेंट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एडप्टेशन। क्या कहते हैं, एडप्टेशन। अगर हमारे पास में याक है, याक लिव ऑन दी माउंटेन्स, अगर माउंटेन्स पर यू नो वेरी वेल देयर इज वेरी कोल्ड कंडीशंस, तो क्या होता है उसके बाद हेयर्स, बड़े बड़े हेयर्स हो जाते हैं माउंटेन्स पे, माउंटेन गोट, बड़े बड़े हेयर्स। इसी टाइप से बच्चों हमारे पास में अगर मैं कहूँ फिश लिव इन दी वाटर, अगर उसकी बॉडी जो होती है, अगर फिश बॉडी हैविंग स्केल्स,
वाई द स्केल्स आर प्रेजेंट? टू मेक द बॉडी वाटर रेसिस्टेंट। उसकी बॉडी को टच करे वो फिसल जाएगी, वैक्सी लेयर होती है उसके ऊपर। वाई? टू मेक इट वाटर प्रूफ। इट स्विम इन दी वाटर, तो फॉर स्विमिंग इन दी वाटर इट हैज फिन्स। यहां पर फिन्स यहां हो जाती है। तो बच्चों ऑल ऑर्गेनिजम्स एडजस्ट अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस, अपने आप को जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट कर लेती है, और इसी एडजस्टमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? एडेप्टेशन। द स्पेशल फीचर्स, तो क्या किया? स्पेशल फीचर्स हम लोगों ने डेवलप कर लिए। द स्पेशल फीचर्स और हैबिट्स जो हमने एडॉप्ट किया है, विच आर ऑर्गेनिज्म डेवलप इन ऑर्डर टू सर्वाइव। द स्पेशल फीचर्स और हैबिट विच द ऑर्गेनिज्म डेवलप इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। तो अपने हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए जो भी स्पेशल फीचर्स वो लोग डेवलप कर लेते हैं, सच काइंड ऑफ स्पेशल फीचर्स आर नोन एज एडेप्टेशन। द स्पेशल फीचर्स और हैबिट्स विच द ऑर्गेनिज्म develop in order to survive in their habitat or known as adaptation।